क्या कह दिया नसीबां नाल ये कड़ियां तेरे सिर नू सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिर नू सजाया लाला फुल कलियां दिया नसीबां नाल ये कड़ियां दिया नसीबां नाल ये कड़ियां तेरे सिर नू सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिर नू सजाया लाला फुल कलियां। वरिष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधिता श्रेणी सुश्री दिव्या शर्मा, नया नंगल, पंजाब। आप एक प्रेरक वक्ता, कराटे में ब्लू बेल्ट, दृष्टि बाधित लोगों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की आरजे और कंटेंट मैनेजर हैं। आपके सम्मेलन असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं तथा आपने पंजाब स्टेट अवार्ड भी प्राप्त किया है। सुश्री दिव्या शर्मा, नया नंगल, पंजाब। ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਡਾਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਆਰਜੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਕਾਲੀਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਐਮਸੀ ਦੀਪਕ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
बेटी की, दिव्या शर्मा की, भारत माता की। कि दुनिया के सब तो खूबसूरत देश भारत के सब तो खूबसूरत राज्य पंजाब और पंजाब के सब तो खूबसूरत शहर नंगल और नंगल के सब तो खूबसूरत इलाके नया नंगल की साडी होनहार बेटी दिव्या शर्मा ने आज साडे नया नंगल का ही नहीं नंगल का ही नहीं पंजाब का ही नहीं पूरे भारत देश का नाम ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ और साडी मातृ शक्ति वालों और साडे सीनियर सिटीजन कौंसल वालों एक बारी बहुत बहुत बधाइयां। जोरदार तालियां नाल दिव्या शर्मा का स्वागत किया जाता है। हुण साडे सीनियर सिटीजन कौंसल के अध्यक्ष DR धामी जी दो शब्द कहेंगे। क्योंकि नंगल की बेटी ने नैशनल पद्धर से एक अचीवमेंट प्राप्त की है, नंगल का नाम उच्चा किया। ना केवल उसने अपने माता पिता का नाम उच्चा किया बल्कि समुचे नंगल के माता पिता का नाम उच्चा कर दिता। मैं पढ़ रहा सी सवेरे अखबार दे विच कि बहुत सारिया समस्यावां आईयां जिस दे कारण पढ़ाई भी रुक गई, कई कुछ होया, पर कहंदे दरिया अपना राह लाभे लेंदे है। इस तरह साडी बेटी ने भी दरिया की तरह अपना राह बनाया और नैशनल पद्धर ते अपनी पहचान बनाई, जिस दे सिट्टे वजों उसनूं मुर्मू द्रौपदी वालों ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਨੰਗਲ, ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆ ਨੰਗਲ, ਔਰ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की बेटी की जय, भारत की बेटी की जय, नंगल की बेटी की जय, नंगल की बेटी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डेट करना सर। ओके धामी साहब 2 मिनट आया। नहीं मैम आप अंदर जी सामने ਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਜੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਮਾ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਸੰਮੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾਚੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ सजदा जे देखिए मेहनत है और लगता है कि एक दिन की वो है, बट जितने भी साल काफी साल की मेहनत है और साथ तो सभी का ही है, फैमिली का, पेरेंट्स का, मेरी ट्विन सिस्टर का, भाई का और जितने भी मुझे प्यार करते हैं लोग, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, तो साथ सभी का रहा है। मुश्किलें आई हैं बट साथ देने वाले भी लोग हमेशा रहे हैं। हाँ जी। और बताइए कौन कौन से आपने, जैसे बताया जा रहा है मार्शल आर्ट में भी? जी जी एक्चुअली ये अवार्ड मुझे इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए मिला है श्रेष्ठ कैटेगरी में, और मैं बाय प्रोफेशन में एक कॉर्पोरेट राइटर हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया और अब्रॉड अक्रॉस द ग्लोब हैं। बट बाय पैशन मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ब्लू बेल्ट इन कराटे और आरजे एंड कंटेंट मैनेजर ऑफ एन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, जो कि 115 कंट्रीज में सुना जाता है और अगले साल फरवरी में से 10 साल हो जाएंगे। तो साथ ही मैं सेंसिटाइजिंग सेशंस करती हूँ, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अलग अलग ऑफिसेज में भी मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित या दिव्यांगजन लोग कैसे काम करते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिन्हें टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं काम करती आ रही हूँ और करती रहूंगी। तो ये सभी चीजों को मद्दे रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कुछ संघर्ष का जैसे बताया कि आपकी जो पढ़ाई है वो 6th क्लास तक स्कूल में है, उसके अलावा आपने घर पे स्टडी की है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। 8th क्लास तक की है मैंने स्कूल में। उसके बाद स्कूल में साधन ना होने के कारण, क्योंकि तब तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो साधन ना होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा स्कूल, या यूँ कह सकते कि उनके पास साधन नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैसे पढ़ाना है। तो तब फिर मम्मी पापा को पता लगा कि कॉरेस्पॉन्डेंटली भी पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद मैंने पर उस वक्त मैंने सोच लिया था कि नंगल में ही रह के सब करना है, और आज मुझे लगता है आज नंगल में रह के मैंने सब किया, चाहे वो मास्टर इंग्लिश, मतलब मैं MA इंग्लिश हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो भी यहीं से किया, बिजनेस भी मैं घर से ही चलाती हूँ, और आज कंटेंट सब भी यहाँ से है। और खुशी होती है कि आज मुझे अलग अलग देशों में मेरे जानने वाले हैं और बहुत प्यार मिलता है, तो सब नंगल से ही हो रहा है। और पंजाब सरकार की तरफ से भी आपको स्टेट अवार्ड मिला है? जी, 2016 में, वो भी मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने के लिए ही मिला था, तो ये योगदान जो मेरा रहा है उसकी वजह से मिला था। जी, राष्ट्रपति से अवार्ड लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जी, स्टेज पर जाते समय कैसा फील हुआ? देखिए हमारी रिहर्सल बहुत हुई, तो वो बहुत थकावट हुई, बट उसका फायदा ये हुआ कि हमें, मतलब जैसे मुझे बहुत कम दिखता है, तो हमें एक असिस्टेंट कह सकते हो, एस्कॉर्ट कह सकते हो, वो दिए गए थे, तो वो एस्कॉर्ट साथ में थे, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई थी
तो वो स्टेप्स वगैरह, कदम वगैरह गिन के ही हम राष्ट्रपति के पास गए। तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मतलब मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग बोला और थैंक यू बोला, तो उन्होंने भी 2 शब्द बोले, तो अच्छा लगा। और काफी लोगों से मतलब ऑफ द कैमरा भी बात हुई, तो काफी अच्छा लगा। काफी अच्छा जो हमारे डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा प्रोविजन किया हुआ था। मैं एक एस्कॉर्ट लेके जा सकती थी, तो मेरे मम्मी एस्कॉर्ट की तरह गए, और पिछले 3 दिन से हमें YMCA नॉट प्लेस में ठहराया गया था। सभी उन्हीं का खर्चा सब कुछ, और नगद तो अवार्ड से 1 दिन पहले ही क्रेडिट हो गया था, जो 1 लाख अवार्ड का वो है प्राइज मनी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, और काफी अच्छा रहा, यादगार। जी, आपने जो मेहनत की बहुत ही शांतमय तरीके से की, शुक्रिया। कि आज किसी पूरे देश में आपकी जो कामयाबी ने शोर मचा दिया। जी, शुक्रिया। नंगल में भी पूरा आपका स्वागत किया गया शुक्रिया। बैंड बाजों से। जी, नंगल वासियों को क्या कहना चाहोगे? देखिए नंगल में ही मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो मेरा यही था कि जैसे मुझे डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़े, तो आसपास के स्कूलों कॉलेजेस में ऐसे किसी के साथ ना हो। तो मैंने नंगल में अवेयरनेस क्रिएट की, सेंसिटाइजेशन सेशंस किए, तो लोगों का काफी साथ मिला। बट कुछ चीजें होती है कि जैसे मुझे कम नहीं दिख रहा, जैसे आप लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ से, तो वो लोगों को पता नहीं लगता कि आपको कम दिख रहा है। तो मैं कई बार लग जाता है कि शायद मैं बात नहीं करती, बट वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी तरफ से उन्हें पहले बोलना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि वो खड़े हैं वहां पे। तो ये थोड़ी सी है, बट नंगल का तो हमेशा साथ रही है, यहीं पे ही मतलब पली हूँ और यहीं पे ही बड़ी हुई हूँ, तो अच्छा प्यार मिल रहा है और सबका साथ मिल रहा है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। बेटी ने आपका नाम रोशन किया, शहर का नाम रोशन किया, पंजाब का नाम रोशन किया। एक बेटी का बाप होने के नाते आपको कैसी फीलिंग है? देखो, हमें तो बहुत प्राउड महसूस होता है इस पे, सभी को महसूस होता है जो जानते हैं बचपन से। तो ये लड़की ऐसी है कि कभी 1 मिनट खाली नहीं बैठी, कभी देखा नहीं हमने कि 1 मिनट भी खाली बैठी हो, और कोई चीज़ भी हो उसके लिए क्यों नहीं कर सकते। एक इंग्लिश में कहते हैं तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ये अगर कोई आगे बैल आ जाए सींग से पकड़ना उसे, ये उस तरह की लड़की है। कोई बात नहीं, मैं फेस करूँगी, सो व्हाट, इसका वो एटीट्यूड है इसका। और मैं तो रियली बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ। 2 बेटियाँ दोनों हैं मेरी, और इस हद तक पहुँचना, और मैं समझता हूँ कि बीइंग पेरेंट्स हम इन्हें एक बेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ तक एजुकेशन की बात है, लेकिन उसके जिसके लिए इसे ये अवार्ड मिला इतना बड़ा, वो सब कुछ इसका अपना ही है। इनिशिएटिव जितने लिए सारे अपने लिए इसने, जैसे स्कूल से निकाल दिया, MA इंग्लिश की इसने, फिर उसके बाद अपने आप ही इसने रेडियो स्टेशन, 3-4 ब्लाइंड हैं ऐसे, काफ़ी ब्रेव बच्चे हैं अपने इंडिया के, दूर दूर हैं, साउथ में हैं, कहीं और हैं, उनके साथ मिलकर रेडियो स्टेशन चलाया अपना। अभी वीक में 3 प्रोग्राम देती है ये, उनमें से एक है वोकैबुलरी डोज है, और खैर क्या नाम लेने उनके, हाँ मोटिवेशन के, बेसिकली मोटिवेशन के वो हैं। और उसके बाद अपना कराटे करती है अपना। ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहली इंडिया की लड़की बनूँ जो ब्लाइंड हो और ब्लैक बेल्ट उसके पास हो, लेकिन इसने यहाँ पे ब्लू बेल्ट किया। उससे पहले जितने भी नीचे बेल्ट्स होती हैं सारी ली इसने, ब्लैक बेल्ट के लिए कुछ नहीं मिला इसे। शी डिड हर बेस्ट। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जैसे स्कूल से निकाला और जितने भी लोग मिलते हैं बेचारी कहते थे, बेचारी, इनकी किस्मत ख़राब है, ये लड़की घर में है। तो इस लड़की ने अपने आप, हाँ एक बताना भूल गया आपको मैं, एक यहाँ पे शिमला में अपना एक NGO है वहाँ पे, तो उन्होंने देखा लड़की के बारे में, मेरे फ्रेंड हैं तो वही चलाते हैं, तो मेरे से बात हुई, तो मैंने बताया कि मेरी बेटी ने अभी ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स लिए हैं, पहले ऐसा है, उन्हें पता था उन्हें। तो कहते मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं 5 मिनट के लिए आऊँगा। शिमला से यहाँ पे आए, महत्वपूर्ण में कोई फंक्शन वगैरह था, अटेंड करने आए, तो बैठे, तो 3-4 घंटे बैठे थे। कहते मैंने इसी कॉन्फ्रेंस करानी है शिमला में, तो शिमला इन्वाइट किया ऐसे, विदिन 2 वीक्स वहाँ पहुँचे। तो हिमाचल के जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, जजेस हो गए, हेड हैं, कॉलेजेस के हेड हैं और हैं, सारे वहाँ पे थे। तो इसकी वहाँ पे उन्होंने जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में होती है, कैसे आप स्क्रीन रीडर कैसे यूज़ करते हैं, ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड को अगर कैसे पढ़ सकते हैं ब्लाइंड आगे, उसके बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा इससे इंटरव्यू हुआ।
डिसेबिलिटी कोई भी हो, आंखों की हो, कोई और डिसेबिलिटी हो, उनके लिए जो एटीट्यूड होता है बच्चों का, टीचर्स का होता है, तो वो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और ये बच्चे भी हमारे जैसे हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है इनका, तो इन्हें इनकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि चलो ये कहाँ पे, ये क्या करेगा लाइफ में। तो इसके मोटिवेशन के जितने भी आसपास स्कूल हैं नंगल के आसपास, नंगल में हैं, BBMB है, हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे, ये सेंट सोल्जर है, महतपुर में है, वशिष्ठ है वहाँ पे, और अनंतपुर कॉलेज है, और भी कई हैं। तो वहाँ जाके इसने स्पीच दी, बच्चों को भी, बच्चे भी बैठे होते थे वहाँ पे, और मोर ओवर टीचर्स वगैरह भी जितने भी हैं। उससे क्या हुआ, इसने ये कहा कि देखो, कोई आप जानते हो फैमिली में हो, कोई जान पहचान में कोई डिसेबिलिटी हो, किसी को हो, मेरे को कॉन्टेक्ट करो आप। तो जहाँ तक आंखों की बात है, मैं गाइड करूँगी। बेटी ने आपको राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया, सोचा था कभी परिवार को? ये था कि लाइफ में कुछ करेगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ है, हम तो जब से छोटी थी तब से हम देखते आ रहे हैं रोजाना, मतलब क्या कर रही है, कि हम तो उसके आदी हो गए थे। ये नई चीज़ उसे लगती है जैसे सुनने को मिलता है, ऐसा है राष्ट्रपति, तो हमें इसकी कैपेबिलिटी पता है, टैलेंट पता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये घर में सुबह उठ करके रात तक, मैंने जैसे पहले भी कहा, मैंने कभी जैसे हम बैठे चलो आराम कर लें, कभी आराम करते हैं देखा था। तो यहाँ तक पहुँची है, इसकी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सभी बहुत प्राउड महसूस करते हैं इस पर, क्योंकि मम्मी ने इसके बता ही दिया। जाना मुझे भी था वहाँ पे, पेरेंट्स को साथ में जाना था, एस्कॉर्ट के तौर पे ये थे, बाकी इनवाइट आया, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मेरे मदर हैं, ये अभी 89 ईयर के हो जाएंगे इस महीने में, तो इन्हें अकेले छोड़ना यहाँ ठीक था नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अंदर आइए। पहले तो एकदम जैसे यकीन ही नहीं आया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इसकी जो मेहनत है इतने सालों की वो रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है। और मेहनत बहुत लोग करते हैं, तो लेकिन इसका जो एक दो खासियत है इसमें, बेटी में, दिव्या में, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये कभी भी कोई लोग डर के, जैसे हम भी कभी छोड़ देते हैं, नहीं ये हमारे से नहीं होगा, पर मैंने इस लड़की को कभी भी ये कहते नहीं सुना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं विजुअली चैलेंज्ड हूं या क्या है। और एक हार्ड वर्क, ये 24 घंटे में से 17 घंटे काम करती है। एक इसका ये कॉर्पोरेट राइटर है, तो इसको जो आता है काम, इसके क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी बाहर भी, तो टाइम बाउंड काम है और देना पड़ता है, उसकी लिमिट होती है कि इतने बजे देना है। और उसके बाद जो ये बाकी के जो भी चीजें इसके, आपने दिव्या ने भी बताई आपको, जो भी है, फिटनेस है, फिटनेस फ्रीक मैं कहूंगी ये है। उसके बाद रेडियो है, उसके जो भी प्रोग्राम्स देने होते हैं, इसका पूरा हफ्ता ही लग जाता है। एक दिन उसकी कंटेंट लिखे जाते हैं, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग होती है, तीसरे दिन एडिटिंग होती है। ये सब हमारे घर पे ही किया जाता है काम। शी वर्क्स फ्रॉम होम। तो फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से कैसा सहयोग रहा उसे? देखो, मैंने आज तक कभी इसको किसी चीज के लिए ना नहीं की, और एक सबसे बड़ी बात, मैंने इसका मोराल नहीं डाउन होने दिया, क्योंकि आपको पता है हमारा समाज कैसा है, ठीक है ना, हर कोई नहीं सोच के बोल पाता, तो कई बातें जो है वो लगती हैं कि भाई, जैसे ट्विन सिस्टर्स हैं ये, तो फर्क तो होगा ही। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसे होता है कि भाई मैं ऐसे क्यों, लेकिन मुझे ये खुशी है कि ये ओवरकम कर जाती है हर एक चीज को, और शायद वही चीज इसको आज इतनी ऊपर ले गई है। और रियली आई एम प्राउड ऑफ हर। बेटियां हों ऐसी ही हों जो हों। कैसे देखते हो वहां पे नंगल का नाम अनाउंस किया गया, कैसे फील किया आपने? मुझे नंगल के नाम से जो नया नंगल बोला गया, नंगल बोला गया, ऐसे लगा कि हमने कोई, हमारे ऊपर कोई कर्ज था हमारे जगह का, क्योंकि मैं भी यहीं पैदा हुई हूँ, बेटी भी यहीं पैदा हुई है, वो आज हमने अदा कर दिया कि नंगल ने जो हमें नाम दिया, जो हम यहाँ रह के इतने खुश रहते हैं, इतनी पीसफुल जगह है, नंगल जैसी तो जगह कोई भी नहीं है, कहीं पर भी चले जाओ। तो नंगल का नाम इसने ऊंचा किया, ये तो सबसे बड़ी बात है। और
जो परिवार जो लड़कियों के बारे में सोचते हैं, अगर समाज की बात की जाए कि लड़कियां, तो लड़कों की डिमांड होती है कि हमारे घर में लड़का पैदा हो, आपकी लड़कियां हैं, तो आप अब क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को इसके बारे में? मेरे बेटियां हैं, मेरा बेटा भी है बड़ा, इनसे 5.5 साल बड़ा बेटा भी है। तो देखो, बेटियां घर में होने बहुत जरूरी हैं। अगर आप घर में चाहते हो कि थोड़ी लाइफ हो, थोड़ी मतलब कलरफुल हो जिंदगी, तो उसमें बेटियों का होना बहुत जरूरी है। और माँ के लिए बेटी होनी बहुत जरूरी है, जो हर स्टेप पे माँ को कही नहीं ऐसे नहीं, अब आप बेटे नहीं कह पाते ऐसे नहीं, ये क्या पहन लिया, ये ठीक से, ये बेटियां ही कर पाती हैं। हाँ जी, मैसेज देना चाहोगे जो लड़कियों को, मैसेज देना चाहोगे? लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि आप बहुत पावरफुल हो और आप सब कुछ कर सकती हो, और जो चैलेंज है वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम लोगों से ज्यादा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, ये सोच के। तो ये है कि जिंदगी में जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। किसी भी मोड़ पे अगर लगे कि भी ये बहुत मुश्किल हो गया है करना या क्या है, तो रास्ते और भी हैं। ये नहीं है एक रास्ता बंद हो गया तो आप सोचो कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखो, आप सब कुछ कर सकते हो। दिव्या ने कितना कुछ किया है। जो भी काम करना चाहते हो उसमें एक्सेल करो। हाँ जी।